I know Dr. Ayub Mirza Sahab very well. When the Pakistani SSG battalions had gone into Afghanistan, I was in touch with him. He was feeding information regularly, and we found that information to be very credible and fairly accurate and timely. Therefore, I'm quite inclined to go with Mirza Sahab. He's an intense patriot. I have been in touch with him for quite some time. And I think we should not shoot the messenger. Covert terror operations on Indian soil, we have to take it very seriously. A former DGP of Jammu and Kashmir with an activist called Amjad Ayub Mirza, they've raised a huge alarm over the possible direct role of Pakistan's SSG commandos carrying out precision attacks on our armed forces. We'll start by asking Dr. Amjad Ayub Mirza. Dr. Mirza, you are claiming that about 600 Pakistan SSG are roaming around in Jammu and Kashmir in civilian clothes. You are also saying that these people, 600 Pakistan SSG, are being led by a Lieutenant Colonel called Shahid Salim Janjua. I have been reporting on Pakistan Army's clandestine activities not from June or July 2024, but for a very long time. At the moment, our information is that General Adil Rahmani, who is the General Officer Commanding of SSG, is located himself in Muzaffarabad. He was spotted yesterday in Muzaffarabad PC Hotel as well, our informants tell us. And about 600 SSG commandos have infiltrated in groups of 50s. So I have these details here. 50 men are there to provide logistic support to SSG battalion. 100 men are in reserve on the line of control. Another information that we have received is that for the past 3 months, Hadis from different organizations were taken to Siachen for high altitude warfare training. There are 3 terrorist camps inside Muzaffarabad. Lieutenant Colonel Shahid Salim Janjua of SSG is leading this offensive. I was told today that at the moment they are lying low, but soon they will resume their terrorist activities inside Jammu Kashmir, roughly somewhere around the 10th of August. और ये भी पता करें ना कि ये छुप कहाँ रहे हैं, ये इनको छुपा रहा है ना कोई, जो इनको छुपा रहा है जम्मू में, वो तो पीओजे से नहीं आया, वो तो वहां का लोकल है. तो ये कौन छुपा रहा है इनको, कौन इनको सेफ हेवन दे रहा है, कौन इनको खाना पीना दे रहा है. तो फिर ये कहना कि जी यहाँ जम्मू जो है ये इतना यहाँ पे आतंकवाद नहीं था, ज्यादा कश्मीर में था, इसलिए हमने यहाँ से कम कर ली सिक्योरिटी या जो भी है. तो मैं आपको बताऊं, अक्टूबर 2021 से लेके अब तक इस इलाकों में, राजौरी वगैरह ये जो इलाके, 30 महीनों में 15 अटैक, यानी हर 2 महीने में अटैक हुआ है यहाँ. तो ये कैसे कहा जा सकता है कि जी यहाँ पे शांत रहा है, वो कश्मीर वादी में ज्यादा था तो यहाँ तवज्जो नहीं दी. ये ऐसे नहीं है. और फिर मुझे जनरल साहब कह रहे थे कि आपस में कोऑर्डिनेशन लैक करता है, पुलिस का, सीआरपीएफ वालों का, आर्मी का, इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक सेंट्रल कमांड के जरिए नहीं काम हो रहा, और बस नंबर बनाने के चक्कर में वो इंफॉर्मेशन भी होल्ड ऑन रखते हैं अपने पास. इस किस्म की उन्होंने बात की थी, इसको भी देखना चाहिए. फिर ये कि आ कैसे रहे हैं जब दोनों तरफ माइंस बिछी हुई है, तो फिर ये कहां से आ रहे हैं, क्रॉस कहां से कर रहे हैं, इनको कौन बता रहा है कि यहाँ माइंस नहीं है. इस तरफ का तो चलो पता है, पाकिस्तान आर्मी ने बता दिया कि यहाँ माइंस नहीं है, और बाहर का कौन बता रहा है इनको कि भाई यहाँ माइंस नहीं है, आ जाओ. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब ये G20 हो रही थी उस वक्त ये जो जम्मू का इलाका है जहां आज हमले आप देख रहे हैं, इसको मैंने नक्शा दिखा के एक एक क्रॉसिंग पॉइंट बताया था कि यहाँ से ये प्लान कर रहे हैं हमले की. बाकायदा हमारे लोगों ने इन्फिल्ट्रेट करके फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मुझे पहुंचाई, जिसको हमने रेडियो मालिया से नशर किया और इंडिया मीडिया ये वो बड़ा शोर मचाया, तो वो अवर्ट हो गया था. मतलब आप जो ग्राउंड पीओजे की जो ग्राउंड लेवल की इंटेलिजेंस है ना, यू हैव टू पे हीड टू दैट. यू कैनॉट जस्ट सिंपली से कि जी ये ग्रिड को इधर से बंद कर रहे हैं, उधर से बंद कर रहे हैं,
वो चूहे ताके ना आए, वो सुराख और मोरियां बंद कर रहे हैं। आपको मुड पकड़ना पड़ेगा। आपको पीओजेके के अंदर जो ग्राउंड पे जो काम हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अब एक तरफ तो ये मैं समझता हूं कि ठीक है, आर्मी भेज दिया आपने, बेचारे हमारे जवान जो है वो अब धक्के खाएंगे पहाड़ों में। मसला ये है कि अभी तक हम ये नहीं समझ रहे कि ये जो जम्मू के हमले हैं ये जम्मू कश्मीर पे हमले नहीं है। These are attacks on the sovereignty of our country. These are attacks on the sovereignty of India. जब ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हम लेके चलेंगे कि ये हमले जम्मू पे नहीं हो रहे, ये देश पे हो रहे हैं, तो हो सकता है हमारी मानसिकता जो अप्रोच है इसको, उसकी मानसिकता में कोई चेंज आए। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैद सर। दीप्ति जी, ऐसा है कि हम डॉक्टर अमजद से मैं बिल्कुल सहमत हूं, और ये अटैक जम्मू पर नहीं है, और वो बड़ा गलत फहमी में होगा जो सोचता होगा कि ये सिर्फ वॉर, मैं 35 साल से इसको डील कर रहा हूं, कि ये सिर्फ लिमिटेड है टू जम्मू कश्मीर। इनके जो स्लीपिंग सेल्स हैं पूरे इंडिया में है। हमारा मुल्क है, इसकी हिफाजत तो हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब मैं ये सवाल उठा रही हूँ तो मुझे वो पिता भी याद है जिन्होंने, कैप्टन थापा के पिता, जब उनका पार्थिव शरीर आया तो उन्होंने जिस तरह से भारत माता की जय के नारे लगाए, मैं कभी भूल नहीं सकती। और ऐसे ही माता पिता और ऐसे ही बेटे हैं जो इस देश की जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन वैद सर, इम्पोर्टेंट ये बेटा भी तो है ना, इस बेटे को मत भूलो, ये भी वो बेटा है जो नजरियाती सरहदों की हिफाजत कर रहा है। आइडियोलॉजिकल जो बाउंड्रीज हैं उनकी भी मैं उनकी हिफाजत भी कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ से भी हिफाजत कर रहा हूँ। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो आती है मीडिया पे फेंक देता हूँ मैं, कि वहां तक पहुंचे ना। मेरी तो पहुंच नहीं है इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों तक, रॉ तक या नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी तक, मेरी तो कोई पहुंच नहीं है ना। मैं किसी को वहां जानता, वरना मैं उनको फोन करता। मेरा तो ये आउटलेट है कि जैसे मुझे टीवी चैनल वाले बुलाएं, मैं शुरू हो जाता हूँ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन फेंकनी, कि शायद कहीं से किसी तरीके से वहां तक चली जाए बात। इतनी बेचैनी है मेरे अंदर, यहां पे मौत लेके फिरता हूं, ओपन हूं, लेकिन सच बोल रहा हूं। तो ये बेटा भी है, इसको भी याद रखना। तो डिफेंस जो होता है वो सिर्फ तोपों और बंदूकों के साथ नहीं होता, और उसका बजट ही नहीं हमें सोचना चाहिए। हमें जो डिफेंस नैरेटिव अटैक्स हैं हमारे ऊपर, जो बयानिए के अटैक्स हैं हमारे ऊपर आलमी सतह पे, कि जी हिंदुस्तान ने पता नहीं कश्मीर में खून की नदियां बहा दी हैं और पूरा जम्मू कश्मीर अंडर सीज हो गया है, और इंडियन आर्मी अब मजीद 500 कमांडोज भेज दिए हैं, और वो जो नेगेटिव नैरेटिव बिल्डिंग है वो भी एक डिफेंस लाइन है जिस पे हमें युद्ध करना है। तो उसको पहले तो मैं ये कहूंगा कि उसको जरूर जेहन में रखे। तोपों से ज्यादा मजबूत जो दिफा होता है वो नैरेटिव के जरिए बिल्ड होता है। और पाकिस्तान का जो इस वक्त मिलिट्री है, और जो पाकिस्तान की बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, बड़ा रूलिंग क्लास है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस से नहीं निकल सकता। वो दोबारा से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को जिंदा कर रहा है पाकिस्तान में। 19 तारीख को, 18 या 19 तारीख को लाहौर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की इन्होंने मीटिंग बुलाई थी। उसके अंदर अब ये कह रहे हैं कि जो आजाद कश्मीर है इसको भी पाकिस्तान के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाए, और ये एक पैरेलल नैरेटिव पाकिस्तान में बना रहे हैं, जिसको ये दिखाना चाहते हैं कि जो जम्मू में अटैक्स हो रहे हैं ये बेसिकली, यानी पाकिस्तान की जो ऑडियंस है उसके लिए ये दिखा रहे हैं कि ये असल में फ्रीडम फाइट हो रही है वहां पे। इसका क्या तोड़ है? कोई तोड़ नहीं है अभी तक। फिर मैं समझता हूं कि इस वक्त एक चीज मिसिंग है इस पूरी एंटी टेररिज्म कैंपेन में जम्मू कश्मीर में, और वो है पब्लिक मोबिलाइजेशन। पब्लिक मोबिलाइजेशन की बड़ी सख्त जरूरत है। रैलीज निकलनी चाहिए जम्मू में और कश्मीर के वादी में, जो इस अटैक को कंडेम करें। जो पब्लिक रिएक्शन है टू सपोर्ट दिस एंटी टेररिस्ट attack on the attackers has to be grounded on public support। तो ऐसी रैलियां क्यों ऑर्गेनाइज नहीं की जा रही? क्या वहां पे देशभगत नहीं है जो ऐसी रैलियां निकालें, सेमिनार्स करें, शोर पड़ जाए पूरे जम्मू कश्मीर में? ये तो वन साइडेड है। जैसे अच्छा भाई जनता, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम एक साइड पे बैठे रहो, हम करेंगे सेना वाले। ऐसे नहीं होता। सेना और जनता को इकट्ठा करना पड़ेगा। सेना और जनता के अंदर एक यूनिटी पैदा करनी पड़ेगी, यूनिटी ऑफ नैरेटिव,
यूनिटी ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट वो मिसिंग है, बहुत ज्यादा होता है। तो अब्दुल्ला साहब की कोई स्टेटमेंट आ जाती है, महबूबा मुफ्ती, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ this generation, they are representatives of the past. Why are we relying on these people to come and issue statements and describe what is wrong and what is right and then follow their leads? क्या मर गए हैं जम्मू कश्मीर के नौजवान? क्या मर गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो क्रांतिकारी? क्या मर गए हैं देशभगत जम्मू कश्मीर में? और हमारे जैसे जो देशभगत हैं वो बाहर बैठे हुए रोना पीटना डाला हुआ उन्होंने, और कोई पूछने वाला नहीं है हमें। तो बात यह है कि मैं तो ये सोच रहा हूं कि जिस नहज पे हालात जा रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूं कि अब मुझे खुद जम्मू आना पड़ेगा और जम्मू के अंदर मुझे खुद मास मोबिलाइजेशन जो है उसको शुरू करना पड़ेगा, और वादी में भी, और फ्रंट से हो के पब्लिक फ्रंट से हमें ये लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज मिसिंग। और मुझे कोई नजर नहीं आ रहा इस वक्त जम्मू कश्मीर में यूथ का लीडर जो सेना के हक में और इन आतंकवादियों के खिलाफ वहां पब्लिक मोबिलाइजेशन करे। मैं देखता हूं ना, पब्लिक मोबिलाइजेशन होती है, 1,00,000 2,00,000 बंदा जब जम्मू में और लाल चौक पे मैं इकट्ठा करता हूं श्रीनगर में, तो मैं देखता हूं कि पाकिस्तान का नैरेटिव फिर किधर जाता है। ठीक है, मैं देखता हूं किधर जाता है। उठाया आपने, इंपॉर्टेंट बिंदु उठाया। जनरल कुलकर्णी, आपने बाकायदा फ्रंट पर रहे हैं, आपने इन बैटल्स को लीड किया है, ग्राउंड सिचुएशन भी देखी है, लेकिन जो अहम बिंदु यहाँ पर डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने उठाया, जल्दी से एक रिएक्शन में आपका चाह रही थी इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने उठाई। अदिति जी, आई हैव नॉट हर्ड अ क्लियरर माइंड देन मिस्टर अमजद हु जस्ट स्पोक. Fantastic. I think he summed it up. He's really said the right thing. यहाँ जब तक जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही ये आतंक जो है लोकल सपोर्ट के बिना नहीं पलक सकता। जब तक वहां के लोग आवाज नहीं उठाएंगे, दे कैन नॉट प्रॉस्पर at the cost of outsourcing security to the security forces. They should be part of it. And what Dr. Amjad is talking about is perfectly bang on. He's hit the nail on the head. जी, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, क्लोजिंग कमेंट में आपका लूंगी। आपने जनरल कुलकर्णी को भी सुना, आपने सुशील पंडित जी को भी सुना, और इन दोनों ने, और आपने खुद ने भी अलग अलग पहलुओं को यहाँ पर एड्रेस किया। क्लोजिंग कमेंट में कौन सी ऐसी 4 बातें हैं जो आप चाहते हैं, आप सजेस्ट करेंगे, आप सलाह देंगे, आप होते हुए देखना चाहेंगे कि भारत सरकार और भारत करे? 4 बातें। नंबर 1 तो ये जो मैंने कहा कि पब्लिक मोबिलाइजेशन की जाए जम्मू कश्मीर दोनों में। दूसरा ये कि जो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैंप्स लगे हुए हैं, जिनकी हम निशानदही कर रहे हैं, जिनकी हम सड़कों के नाम तक बता रहे हैं जहां पे वो हैं, उनको जो है सॉर्ट आउट किया जाए। नंबर 3, जो यूनाइटेड नेशन में हमारे मंदूब बैठे हुए हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं इंडिया के, वो वहां पे इस मसले को फौरी तौर पर उठाएं। और नंबर 4 बीजेपी की सरकार, जिनके इंतहाई महत्वपूर्ण नेता योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि इलेक्शन जीतने के बाद 6 महीने में हम पीओके को आजाद कराएंगे, वो उसके बारे में बताएं कि वो क्या कर रहे हैं और उसके बारे में उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। और बेशक वो ओपनली अगर नहीं भी बताना चाहते, लेकिन उसके ऊपर बात की जाए, वो मोमेंटम बिल्ड किया जाए पूरे भारत में, ताकि पूरा भारत की जो जनता है और जो महकमाजात हैं वो ज़हनी तौर पर, मानसिकता के तौर पर तैयार हों पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान को वापस इनकॉर्पोरेट करने के लिए। और ये जो वॉर ऑफ नैरेटिव है, इसमें आप क्या चाहते हैं भारत सरकार? वो तो मैं सोच रहा हूं कि मुझे आना पड़ेगा खुद, क्योंकि ऐसे टीवी इंटरव्यूज के जरिए तो ये मामला हल नहीं होगा। तो मैं सोच रहा हूं बड़ी संजीदगी के साथ कि मुझे खुद आके अपने देश की रक्षा के लिए ये लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, इंडिया आके और जम्मू और कश्मीर जाके। एक लाइन नोट करके लिख ली थी आज के शो के लिए उन्होंने, ये उनका बयानिया है, ये नैरेटिव है जो टर्किश नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर चला रहा है। आर्म्ड ऑपोजिशन ग्रुप्स हैव आल्सो वेज्ड a 35-year-long insurgency demanding independence for the territory or its merger with Pakistan. ये टर्किश, और ये देखे ना ये कितना एफिशिएंटली ये काम कर रहे हैं हम लोगों के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ, और पाकिस्तान की जो प्रॉक्सीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको लेजिटिमाइज करने के लिए,
कि ये चंद मसाले आपके सामने, और आपने जैसे फरमाया बिल्कुल पाकिस्तान अपना जो ये टारगेट है उनका कि इकोनॉमिकली जो डेवलपमेंट हो रही है जम्मू कश्मीर में उस पर ब्रेक लगाई जाए, तितर बितर किया जाए सारा कुछ, उस वो उनका एम है। अब उसमें कामयाब होते या नहीं होते ये एक अलग सवाल है। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, सोल्यूशन क्या है? मल्टी प्रोंग अप्रोच चाहिए इसके लिए। मैंने कल भी कहा था कि इस वक्त जम्मू में, कश्मीर में पब्लिक मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है, कि पब्लिक की तरफ से जो है वो एक नफरत का इजहार किया जाए इन हमलों के खिलाफ। पब्लिक की तरफ से जो है सड़कों के ऊपर लोग निकल के पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएं, ताकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये पता चले कि ये इस किस्म के आतंकी हमले जो है इसका वो रिजल्ट वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो वो चाहते हैं, बल्कि वो और ज्यादा कश्मीर और जम्मू के अवाम को पाकिस्तान से दूर धकेल रहे हैं ऐसे हमले करके। ये जोक नहीं कर रहे, वो एक्चुअली बहुत सीरियस बात कर रहे हैं। जी जी, ये बहुत जरूरी है। नहीं, मजाक नहीं चल रहा, वो जो बात कर रहे हैं वो बहुत सीरियस बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो है देखें, एक वीडियो रिलीज हुई थी, इंटरव्यू था डिप्टी कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन का। वो वीडियो मैंने मीडिया इंडियन को भी दी, आपको भी भेजी थी। मैंने अपने चैनल से वो नहीं दिखाई, कॉपीराइट इश्यू हो जाते हैं यूट्यूब के। उसमें वो कह रहा है कि हमारा टारगेट ये है कि हम इंडियन आर्मी को एंगेज करें, तो वो उसमें कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने कहा हम इंडियन आर्मी को चोट लगाना चाहते हैं, हम उसको एंगेज रखना चाहते हैं ताकि ये जो पीरियड ऑफ लल आ गया था बीच में वो खत्म हो, और वो कामयाबी से वो कर रहे हैं। तो उसका तोड़ जो है, उसके तोड़ के लिए जो है मैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट चल रही थी, मैं उसको ओपनली एंडोर्स करूं, दिल्ली से एंडोर्स करूं कि ये हिंदुस्तानी नागरिक हैं, इनके ऊपर जो पाकिस्तान सरकार कर रही है वो गलत है। मतलब है मैं उसको भी वहां से सपोर्ट दूं कि अच्छा तुम यहां ऐसे करोगे तो फिर मैं वहां ऐसे करूंगा, फिर आ जाओ फिर मैदान में, फिर हम भी वहां सपोर्ट करते हैं उनको। ये है, सिर्फ मिलिट्री सोल्यूशन नहीं होता इन चीजों का, किसी वक्त ये भी होता है कि पब्लिक के अंदर उसको इतना ज्यादा वो कर दिया जाए, जिसे कहते हैं डिसेंसिटाइज कर दिया जाए मसले को, कि पब्लिक सपोर्ट ही खत्म हो जाए उसके लिए, लोगों की तवज्जो ही कहीं और हो जाए। और फिर वो लोग जो पीओजे में बैठे ये सोचते हैं कि यार जम्मू कश्मीर में इतनी तरक्की होगी, इतनी तरक्की होगी, उनको जब आवाज जाती है दिल्ली से जाएगी कि भाई तुम हमारे हो, तो देखो जब किसी को चोट लगी हो ना, तो उस वक्त कोई भी मरहम ऊपर रखे ना, तो वो बहुत उसके साथ बहुत प्यार हो जाता है, बहुत पसंद आता है वो। तो ये चीजें होनी चाहिए। और फिर तीसरी चीज जो है वो अगर नहीं है बाज आते, तो फिर हमें दें जगह जम्मू में, हम वहां पे जिस तरह मैंने कल कहा था ये आतंकवादी कैंप खुले हुए हैं, हम क्रांतिकारी कैंप खोलेंगे। आतंकवादी कैंप जो है उसकी तो एक जो उससे तो एक नफरत का होता है ना कि ये आतंकवाद है, तो हम क्रांतिकारी खोलेंगे। हमें छोड़ें, आप इंडियन आर्मी को पीछे करें, हम आगे होते हैं, हम जाके लड़ते हैं इनसे। हम पाकिस्तानी ना है ना होंगे, हमें पाकिस्तानी कहना गाली है।